Everyone, welcome to the first chapter of class 9, that is India's size and location. As I always say, we should always understand the topic first before going to the chapter. The topic should be understood by us. So the chapter name is India's size and location. So in this chapter we are going to learn about India's size, that is what is the total size of this, what is its size in the world, how much of land it have in the world, and the location, that is its longitudinal and latitudinal extent in the world. So let us go to the chapter. So here you all can see what is given in the chapter. Let us understand. So you see, it is written, India is one of the ancient civilization in the world. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. It has also contributed significantly to the making of the world history. So you see, ये जो lines यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है introduction to the chapter. तो हमें इस चैप्टर में इंडिया के साइज, लोकेशन के साथ साथ how India has contributed to the world history, how India is having a remarkable position in the world history, in the world, in the present, and in the past. That's what is also described here. So you see, अगर हम देखेंगे, इंडिया, the name itself is enough to explain about it. You see, this is the only country in the world which is having a ocean named after it. So in that way, India is having a very specific and remarkable position in the world. So let us go to the chapter. और ये देखिए इंडिया का लोकेशन और साइज क्या है. तो अगर हम लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देखो, इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री. दिस इज़ द वर्ल्ड मैप वेयर यू कैन सी, आई एम शोइंग यू. यू सी हियर देयर इज़ अ डॉट. Better to show this dot with this line. You will see, I hope this dotted line you all can see, and here also another dotted line is there from the north to south, and this dotted line is from the west to east. So this dotted line, I'm going for a better one. So this dotted line, you can see, it has divided the world into two parts, the northern hemisphere and the southern hemisphere, whereas this line have divided the world into the western hemisphere and this is the eastern hemisphere. So all of you can see that here the India is located. So it is coming under the north and northeast hemisphere. Okay, so going to the book, what is written, you see, India is a vast country lying entirely in the northern hemisphere. आप देख सकते हो ये पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है और यहाँ से भी ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है. और ये देखो, ये जो पर्पल कलर का है ये है आपका एशिया. सो इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ द एशिया, दैट टू इट्स अ साउथर्न कंट्री ऑफ द एशियन कंटिनेंट, द बिगेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. सो इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ इट and it is a southern country. So here you see, the mainland extends between the latitudes of 88 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north, and longitude 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east. So, and the Tropic of Cancer divides it into two parts, that I am going to show you in the next image. All of you can see here. So this is where India is located. I am just erasing this one, the previous one. So here you see, this is the line 8 degree 4 minutes. So from this line to this line. So ये जो लाइन्स है, यहाँ पे अगर हम कलर्स का यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा. ये देखो, ये जो लाइन्स है ये है आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड. उनको कैसे याद रखेंगे, देखो रेड लाइन्स, ये जो रेड लाइन्स नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे वो है आपके लॉन्गिट्यूड्स, और ये जो ग्रीन कलर के लाइन्स मैंने खींचे हैं विच इज़ गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये है आपका लैटिट्यूड. इनको हम कैसे याद रखें, जो लेटा हुआ है मतलब जो सोया हुआ है, जो लाइन सोया हुआ है वो है आपका लैटिट्यूड, और जो लाइन खड़ा हुआ है लॉन्गिट्यूड, ये जो लॉन्ग लाइन्स है ये है लॉन्गिट्यूड्स, और ये जो लेटे हुए हैं वो है लैटिट्यूड्स. सो यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट कौन सा है और लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट कौन सा है. आप देखो, अगर इंडिया इट इज़ गोइंग फ्रॉम दिस ये जो लेटा हुआ लाइन है, तो सबसे पहला लेटा हुआ लाइन जो इंडिया को क्रॉस करता है और टच करता है वो है ये वाला लाइन,
और सबसे लास्ट में जो टच करता है वो है ये वाला लाइन। तो इंडिया इस लैटिट्यूड से इस लैटिट्यूड तक क्रॉस किया है। सो लेट मी शो यू हियर, you can see here from this line 8 degree 4 minute to 37 degree 6 minute is the latitudinal extent of India, and from here India is extending from the 68 degree 7 to 97 degree 25 minute east. So my dear students, all of you see that ये जो longitude है, ये lines, ये जो 68 डिग्री 7 मिनट का लॉन्गिट्यूड है ये पहले इंडिया को टच करता है यहाँ से, और लास्ट वाला जो टच करता है वो है आपका ये वाला लाइन 97 डिग्री 25 मिनट वाला लाइन। सो ये है इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल एंड लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। और ये लाइन आप देख सकते हो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन्स है, ये जो डॉटेड लाइन है ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ विच डिवाइड्स इंडिया इंटू इक्वली, ऐसे दिखता है आप देख भी सकते हो, इक्वली इंटू टू पार्ट्स, the northern part and the southern part. So here I will also say you another thing. You see, India is the country which is equally having a coastline plus a land boundary. ये जो southern part है, ये southern part पूरा इसका coastline है. You can see it's having a long coastline, and as there is no other country else than India which has shared such a big coastline, that is why the Indian Ocean which is here, it is named after the famous country India. So this is the next part. You see the land boundary we are having. So अगर हम देखें इंडिया का कोस्ट लाइन, इट इज़ नियरली 7516.6 किलोमीटर, बट व्हेन वी इंक्लूड दिस लैंड बाउंड्रीज इट विल बी नियरली 15,200 किलोमीटर अप्रॉक्स. So coming to the next part, you see here we have the Andaman and Nicobar Island which is there in the Bay of Bengal side, and the Lakshadweep in the which side? Lakshadweep is in the Arabian Sea side, that is in the western part of India. So next go to the size. If we talk about the size of India, let us see, this is North America, South America, Africa, Europe, this is Asia, and this is Australia. And you see India, it is also having a remarkable position, remarkable place. It's not a very small country. You see, it is having 2.4% of the total geographical area of the country, plus it is having a 3.28 million square kilometer of the total area. So India's area is nearly 3.28 million square kilometer, plus it is also having a 2.4% of the total land of the world. Isn't that a very big amount? It is. सो फिर देखते हैं इसमें और क्या लिखा हुआ है इंडिया का साइज लोकेशन से अगर हम देखेंगे तो ये है, ये जो मेरा बुक है इसमें आपको डाटा 2015 का है. सो इन दिस 2015 डाटा कोई कहीं कहीं पे ये डाटा अपडेटेड नहीं होता है. अगर आपके पास अपडेटेड बुक नहीं है तो आप अपडेटेड डाटा हमेशा अपने यूज़ जब करोगे तो अपडेटेड डाटा यूज़ करना ही बेटर है. तो यहाँ पे आप देखो रसिया सबसे लार्जेस्ट है जो कि 17.09 स्क्वायर किलोमीटर है, और इंडिया का पोजीशन उसमें आता है आपका 7. फिर उसके बाद आपका कनाडा आता है, फिर यूएसए आता है, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया. सो इंडिया भी एक रिमार्केबल पोजीशन रहता है. यूजुअली आपको ये एग्ज़ाम में आएगा जो व्हाट आर द अदर कंट्रीज़ विच आर बिगर दैन इंडिया, सो दैट यू हैव टू राइट, यू हैव टू रिमेंबर. सो बेटर आप ये वाला अगर याद रखोगे तो आपके लिए ईजी होगा. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आप देख रहे हो नेक्स्ट इमेज में आप ये देखे हो. सो इंडिया का जो पोजीशन है यहाँ पे आई एम शोइंग यू, आप देख सकते हो इंडिया का ये जो पोजीशन है यहाँ से 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25 तक. अगर आप इसको इससे डिवाइड सब्ट्रैक्ट करोगे तो नियरली आपका कितना आएगा 29 डिग्री 18 मिनट्स आएगा. और ये जो 8 डिग्री 4 है इसको अगर 37 डिग्री 6 से डिडक्ट करोगे तो आपका 29 डिग्री 2 आएगा. वो क्या होता है आपका, दैट इज़ नियरली 29 डिग्री 18 या 29 डिग्री 2, जो भी दोनों का डिफरेंस है इट इज़ अप्रोक्सीमेटली योर 30 डिग्री. सो हम क्या बोल सकते हैं, इंडिया अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री एक्सटेंड हुआ है नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ से साउथ और ईस्ट
ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन और नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ये यूजुअली 30 डिग्री है, क्योंकि 29 डिग्री 18 मिनट हो या 29 डिग्री 2 मिनट, इट इज़ नॉर्मली दैट अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री इट इज़ कमिंग। सो आप देख सकते हो इंडिया का जो किलोमीटर वाइज डिफरेंस है ये नॉर्थ से साउथ तक है आपका 3214 किलोमीटर, वेर आज ये ईस्ट वेस्ट में क्या है आपका 2933 किलोमीटर। सो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है इंडिया का टाइम जोन। हर एक कंट्री का अपना टाइम जोन होता है, तो ये जो टाइम जोन होता है हम इसको कैसे रखें, GMT +30, GMT +1 मीन्स 1 आवर, GMT +130, GMT +2 आवर्स। सो इंडिया का टाइम जोन आप लोग मोबाइल में सेट भी करते होंगे, इट इज़ GMT +530। सो यहाँ पे हमने 530 ही क्यों लिया है, इसका कैलकुलेशन है। आप यहाँ पे देखो ये जो 68 डिग्री 7 को आपको 97 डिग्री 25 के साथ ऐड करना है, मैं आपको बता रही हूँ आप इसका कैसे कर सकते हो। सो जब हम ये दोनों को ऐड करते हैं हमारा कितना आता है, इट इज़ 166 अप्रोक्सीमेटली आप लोगे तो 166 डिग्री एंड 32 मिनट्स। सो उसको 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि आपने 2 वैल्यूज़ यहाँ पे लिया है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 165 डिग्री 32 डिवाइडेड बाई 2 इज़ नियरली 82.5 एंड 16 मिनट। सो अप्रोक्सीमेटली हम लोग कितना लिए हैं, अप्रोक्सीमेटली वी हैव टेकन इट 82 डिग्री 30 मिनट्स। ये जो लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। सो देखो वाई 82 डिग्री 30 मिनट्स, एग्जैक्ट टाइम अगर आप देखोगे तो 82 डिग्री 30 मिनट्स नहीं होगा, लेकिन हमने 82 डिग्री 30 मिनट्स इसलिए लिए है क्योंकि जो नियरेस्ट GMT इसका आता है वो है आपका GMT +530। सो अभी प्रॉब्लम होता है कि क्यों हमने ये GMT लिया। अगर आप इंडिया का GMT नहीं लेते हो तो यहाँ पे अगर आप टाइम कैलकुलेट करोगे यहाँ से यहाँ तक का एक्सटेंशन अगर 30 डिग्री है, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट है, तो 30 डिग्री इंटू 4 होने से कितना होता है 120 मिनट्स, दैट इज़ नियरली 2 आवर्स। सो अगर आपका गुजरात में 6 बजा होगा तो अरुणाचल प्रदेश में 8 बजा होगा। इसके वजह से देश का कम्युनिकेशन कम्प्लीटली हैम्पर कर जाता है, जिसके वजह से हमने एक मिडिल वैल्यू लिया है जो है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। ओके, फिर हमें उसी पेज में आना चाहिए जो है हमारा इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया का वर्ल्ड के साथ कैसा संपर्क है, आप अभी भी देख सकते हो इंडिया का वर्ल्ड के साथ कैसा संपर्क है। जब other countries are not ready to give the vaccine, at that time India is producing the vaccine and it is also giving to the poorer countries. So India has created its own position in the world. So here अगर हम देखेंगे तो India is well connected to all the countries. I am showing you this. If you have your world map you can also check it with that. यहाँ पे मैं आपको वर्ल्ड मैप इसलिए दिखा रही हूँ, वर्ल्ड फिजिकल मैप, क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड है। तो ये आप देखो ये है इंडिया का पोजीशन यहाँ पे। तो इंडिया का पोजीशन ही इंडिया को हेल्प करता है पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होने में। तो आप यहाँ पे देखो ये है आपका एशिया, लैंड रूट में इंडिया वॉज वेल कनेक्टेड विथ एशिया। उसके साथ साथ ये जो एरिया है यहाँ पे है आपका रेड सी, और यहाँ पे जब स्वेज कैनाल बनाया गया उसके बाद से क्या हुआ, इंडिया इज़ वेल कनेक्टेड टू द यूरोप थ्रू। पहले क्या होता था, यूरोप से दे वेर कमिंग टू इंडिया थ्रू दिस। और ये जो जगह है इसको बोला जाता था केप ऑफ बैड होप, क्योंकि इसके क्रॉस करके द पीपल वेर नॉट एबल टू क्रॉस दिस एरिया। इसको क्रॉस करके वो लोग इंडिया आ नहीं सकते थे, इसलिए इसको बोला जाता था केप ऑफ बैड होप। लेकिन जब से इंडिया का लोकेशन पता चल गया तब से ये आपका केप ऑफ बैड होप से केप ऑफ गुड होप बदल गया। सो यहाँ पे आप देखो पहले इंडिया तो ये जो आपका है एशिया का सारी जगहों के साथ इट वाज वेल कनेक्टेड विद द लैंड। आपका सिल्क रूट जो था इट वाज अ रूट थ्रू विच इंडिया वाज गोइंग टू चाइना इन ऑर्डर टू गेट सिल्क, एज इट वाज लोकेटेड एट अ हाई एल्टीट्यूड, दैट वाज इट वाज वेरी फेमस। सो अब यहाँ पे देखो ये जो अरेबियन है ये है आपका अरेबियन पेनिनसुला। सो अरब पीपल्स वेर ऑल्सो कमिंग टू इंडिया, दे वर टेकिंग, इंडिया वॉज फेमस फॉर कॉटन, indigo, spices, and they were taking all these things from India, they were selling it to the European people. You see the Europe, they can, from Europe the people they can connect to Arab, because ये जो टर्की है, टर्की में एक जगह है आपका कॉन्स्टेंटिनोपल और इस्तांबुल, ये वाला जगह है। सो वहाँ से लैंड रूट कनेक्ट था, दैट इज़ ओनली लैंड रूट जहाँ से यूरोप वाले आ सकते थे इंडिया में। सो वो लोग वहाँ से आते थे, ये अरेबियन पेनिनसुला, और अरेबियन पेनिनसुला में क्या होता था, अरब का एक जगह है मोसुल। सो अरब के लोग क्या करते थे, इंडिया से
कॉटन हुआ, स्पाइसेस हुआ, ये सारी चीज़ें लेके यहाँ पे बेचते थे। तो ये जो मोसुल बोल के जगह में कॉटन बेचा जाता था, उसको मुस्लिन का नाम दिया गया था। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन वॉज कॉल्ड एज मुस्लिन। मोसुल से मुस्लिन का नाम दिया गया था, लेकिन दैट वॉज द कॉटन फ्रॉम इंडिया। सो हियर यू सी फ्रॉम दिस पार्ट, India is also connected to, this is Asia, and it through the Suez Canal and this Red Sea area through the Mediterranean Sea, it is also connected to Europe, and then it is also connected to Africa. You can see this part also, it is well connected, Australia, Java, Sumatra, Indonesia, all these Southeast Asian countries, plus it is also well connected to North America, South America, or else from this side after crossing the Java, Sumatra, it can well connect to the upper part. This is your North America and the South America. So India's location is perfect. It is not landlocked. It is having equally a very big coastline on a land boundary too. So it is well connected to many countries and most of all the countries through its land and marine routes. And that is why India's central location has helped India a lot for its development. Historically and also in the terms of economic development, India is having a remarkable position. और यहाँ पे सवाल आता है, इंडिया किस चीज़ का ट्रेड करता था? इंडिया बहुत सारी चीज़ों की ट्रेड करता था। इंडिया बस कमोडिटीज़ का ट्रेड करता था ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो इंडिया इसके साथ साथ आइडियाज़ भी ट्रेड कर रहे थे, जैसे कि द आइडिया ऑफ उपनिषद, द आइडिया ऑफ रामायण, महाभारत, द ग्रेट एपिक्स, उसके साथ साथ जातक, पंचतंत्र, ये सारे जो स्टोरीज है जिससे हमें मोरल स्टोरीज, मोरल वैल्यूज़ मिलते हैं, ये सारे भी इंडिया फॉरेन को दिए हैं टू द होल वर्ल्ड। दिस इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया। बस सामान तो हर एक चीज़ हर एक कंट्री बेच रहे थे, हर एक कंट्री उसका ट्रेड कर रहे थे, पर उसके साथ साथ हमने आइडियाज़ भी लोगों के साथ शेयर किया। और सबसे अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ द डेसिमल सिस्टम। द डेसिमल सिस्टम, even I can say the astronomy, the a lot of other history, even you see the medicines and all, a lot of things are from India, and all these things went to the whole world. India was also called as the golden bird of ancient time, and because of that many people from different countries, they came to India and they started plundering India, and you see that is why India couldn't grow. India's development stopped. Anyways, सो व्हाट आई वांट टू से हियर इज़ दैट, आप देखो इंडिया का पोजीशन इतना अच्छा है, सेंट्रली लोकेटेड है, जिसके वजह से ये पूरे विश्व के साथ अच्छे से कनेक्टेड है। और इंडिया कमोडिटीज़ के साथ साथ आइडिया के भी बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ शेयर किया है। एंड ऐसे नहीं कि बस इंडिया ही शेयर किया है, आपने पढ़ा होगा कैसे इंडो ग्रीक्स, शक्कस एंड कुशाणस दे केम टू इंडिया। सो जब वो लोग भी हमारे देश में आते थे तो हम भी उनसे कुछ सीखने को पाते थे। हमारा आर्किटेक्चरल स्टाइल, हमारा लिटरेचर, ये सब भी, हमारा ड्रेसिंग सेंस दिस डेज, आवर कल्चर इज़ ऑल्सो लिटिल बिट इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉरेन पीपल्स। सो हियर इंडिया एंड वर्ल्ड, हमें ये समझ में आता है इंडिया जितना दिया है उतना पाया भी है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इंडियाज नेबर्स। इंडिया के नेबर कौन कौन है? अब देखो इंडिया के नेबर जो है, यहाँ पे ये आपका पाकिस्तान, यहाँ पे है आपका अफगानिस्तान, ये दोनों है नॉर्थ ईस्ट में, और इधर है आपका चाइना, नेपाल और भूटान। ये तीनों है कहाँ पे? ये तीनों है आपके नॉर्थ में। फॉर द बेटर इमेज वी कैन सी द नेक्स्ट पेज, एंड द नेक्स्ट पेज इज, यहाँ पे आप देखो ये है, अमेजिंग दिस पेज इज, you see this is Pakistan and Afghanistan which is sharing their boundary in the northwest. Then it is China, this is Nepal, this is Bhutan which is sharing their boundary in the north. Then it is Bangladesh and this is Myanmar in the east. Now this is Sri Lanka and this is Maldives, which do not have a land boundary with us, but they are in the southern part of India, so they are also having a boundary with us in the southern part. So अभी आप ये भी निकाल सकते हो, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे आपको लिस्ट आउट करना है। आप देखो इसमें आपको दो फाइंड आउट था, पेज नंबर 2 में एक था, पेज नंबर 4 में एक था। आप वो फाइंड आउट्स करोगे तो आपको फन लर्निंग होगा एंड यू कैन ऑल्सो हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देखो ये है आपका मध्य प्रदेश, द ओनली स्टेट हम नहीं कह सकते क्योंकि इसके साथ और भी ऐड हो गए हैं, ये जो एरिया है आपका। सो पहले क्या था, बिहार और झारखंड ये दोनों मिले हुए थे, इसीलिए बिहार था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ थे। लेकिन अभी क्या हो गया है, आपका छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये है आपका हरियाणा
देन हियर आपका झारखंड, ये सारे कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ शेयर नहीं करते, इनका बाउंड्री कोई भी इंटरनेशनल कंट्री के साथ फ्रंटियर नहीं बनाता है। सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ना लिस्ट बना सकते हो, मतलब भूटान इसके कौन से साइड में कौन सा स्टेट है। और दूसरा लिस्ट अगर वो आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है, बेटर आप ये करना, सिक्किम लिखना, सिक्किम के नॉर्थ में कौन है, सिक्किम के वेस्ट में कौन है, सिक्किम के ईस्ट में कौन है। सिक्किम के वेस्ट में नेपाल, सिक्किम के ईस्ट में भूटान, सिक्किम के नॉर्थ में चाइना। तो आप ऐसे करके लिस्ट बनाओगे तो आपके लिए इजी भी होगा याद रखने के लिए। तो इसमें मैं आपको क्या बताऊंगी, ये देखो द नोट्स अगर आपको चाहिए तो नोट्स के लिए आई हैव गिवन द लिंक, यू कैन ऑल्सो चेक इन दैट लिंक, जिसमें आपको इस चैप्टर का पूरा लिंक भी मिल जाएगा। और क्वेश्चन आंसर पार्ट अगर चाहते हो तो क्वेश्चन आंसर पार्ट बेटर यही होता है कि आपको खुद से निकालना चाहिए, फिर भी क्वेश्चन आंसर इजीली गिवन इन द बुक। वी कैन ऑल्सो गो विद द क्वेश्चन आंसर नाउ। सो हियर I will say you one thing, just follow this NCERT book and this NCERT images, you can find out the answer for all. So now let us go to the question part. Before that I will also say this is the Andaman Nicobar which is there in the Bay of Bengal, and this is the लक्षद्वीप विच इज़ देयर इन द अरेबियन सी। तो इसमें आपको और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ये जो इंडिया है इसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्यों सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, क्योंकि इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज जो इसके साथ टाई अप करके रहते हैं वो सब इसके सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। तो ये इसमें पाकिस्तान आ जाएगा, नेपाल आएगा, भूटान आएगा, बांग्लादेश आएगा, ये सब मिलके आपका क्या होता है, श्रीलंका आएगा, ये सब आके मिलके आपका क्या होता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो नोट्स के लिए आप मेरा ब्लॉगर अकाउंट देख सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें आपको नोट्स मिल जाएगा। तो चलो अभी हम क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर, जिसमें हम जाते हैं पहला क्वेश्चन, वो क्या है, यस, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू, एंड द राइट आंसर इज, इट इज़ व्हाट, इट इज़ ओडिशा। सो थ्रू ओडिशा ये नहीं जाता है, बाकी तीनों में ये क्रॉस करता है। नेक्स्ट क्या है, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, एंड द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज योर दिस वन, 97 degree 25 minute east. Next, coming to the third part, third question, Uttarakhand, UP, Bihar, West Bengal and Sikkim have common frontiers with, very good question, it is your Nepal, because चाइना के साथ नहीं आता है। चाइना के साथ आपका कौन नहीं आएगा, चाइना के साथ उत्तराखंड, इसके साथ आता है कॉमन फ्रंटियर, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। म्यांमार के साथ भी नहीं आता है, नेपाल के साथ आएगा। सो नेक्स्ट इज योर, इफ़ यू इंटेंड टू विजिट, यस, इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कावरत्ती ड्यूरिंग योर summer vacation, which one of the following union territories you will visit? The answer is your Lakshadweep. Kavaratti is the yes, capital of Lakshadweep. Next one is the last one, your friend which is from a country which is not having any land boundary with India. So the answer will be Tajikistan, which is not having any land boundary with India. Next, name the group of island lying in the Arabian Sea, that is your, which one? The Arabian Sea, it is your Lakshadweep. Fine. The next one is your, the countries which are larger than India. So the countries which are larger than India is your Russia, Canada, USA, China, Brazil and Australia. And Russia is the largest among all, and the total area is 17.09 million square kilometer, while India is how much? It is only 3.28 million square kilometer. Okay. So next one, the next third question is, which island group of India lies to the southeast? The Andaman and Nicobar is the answer, which is lying to the southeast of India, that is in the Bay of Bengal, and India has a land boundary of nearly 15,200 kilometers. The total length of the coastline is how much? It is 7,516.6 kilometers, okay, including these islands too, and that's Andaman, Nicobar and Lakshadweep. So coming to the fourth question, that is, which island countries are our southern neighbors? Our southern neighbors are the Sri Lanka and Maldives. The Maldives Island are situated to the south of Lakshadweep Island, while the Sri Lanka is separated from India through a narrow channel of sea formed by the Park Strait and the Gulf of Mannar. So now the third question, it is little bit tricky. The fourth question is also a lengthy one. So I can elaborate to you the answers. So in question number 3, it is asking, the sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to the Gujarat in the west, and the watches slow the same time. How the watches show the same time? How does it happen?
Yes. How does it happen? So the latitudinal and longitudinal extent of India is nearly 30 degree. So where the east-west extension is smaller and the north-south extension. Okay, so you can see that the east-west is smaller than the north-south extension. So there is a time lag of 2 hours from Gujarat to Arunachal Pradesh. As the Arunachal Pradesh is lied to the eastern side of India, so therefore the sun rises earlier in the Arunachal Pradesh than Gujarat. So also the time along the standard meridian of India, that is 82 degree 30 minute east, which is passing through Mirzapur of Uttar Pradesh state, it is taken as a standard time for India. The whole country has to accept this. So the latitudinal extent influence the duration of day and night. That is, one moves from the south to the north. Therefore, the watches show the same time in all the part of the country, as we have accepted one common time zone for the whole country. So now the last question of the chapter, that is the central location of India at the head of Indian Ocean, is considered of a great significance. Why? So this question answer also I am telling how India's position has helped it a lot. So India is a southward extension of the Asian continent, and that has a central location between whom? Between East and West Asia. So the Indian Ocean provides a strategic central location to India, as it connects the East Asian countries with the country of Europe in the west too. So the Deccan Peninsula, that is the downer part of India, the southern part of India, the Deccan Peninsula also protrudes into the Indian Ocean, which helps India to establish a close contact with the West Asia, Africa and Europe from the western coast, and with the Southeast and East Asia from the eastern coast. So both the coastal part of India helps a lot to it for connecting it to different parts of the world. There is no other country like India which has a long coastline in the Indian Ocean. That is why the name is well justified. The ocean is well justified to have India as its name. That is why it is called as the Indian Ocean. So with this we completed the chapter 1. You can give me your comments, you can give me your feedback in the comment box, also in the Google form I have given. And if you want to have the notes for this chapter, that is there in the description box, you can also get the notes from there.